غزہ کے مزید اسپتال بھی اسرائیل کے نشانے پر۔ القدس اور الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریبی علاقوں میں 30 منٹ تک بمباری۔ اسپتال کا عملہ اور مریضوں کے دل دہل گئے۔ غزہ سٹی اور جنوبی علاقوں میں بھی رہائشی عمارتوں پر تازہ حملوں میں عورتوں بچوں سمیت کئی فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے تحت خان یونس میں چلنے والے اسکول کو بھی نقصان۔ اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینی قتل کر دیے۔ مجموعی تعداد 3500 سے زیادہ، زخمی 13,000۔ مغربی کنارے کے علاقوں رام اللہ اور نابلوں میں بھی اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ کیا پتھر کے بدلے گولی مارنا جائز ہے؟ اسرائیلی فوجی ترجمان نے برطانوی ٹی وی کو جواب دیا، احمق پن برداشت نہیں، پتھر سے بھی موت ہو جاتی ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے حملے، اسرائیل نے 2000 اموات کی تصدیق کر دی، 4500 سے زائد افراد زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں کو ہدف بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ فوج کے گلیلی ڈویژن اور شیبہ فارمز کے علاقوں میں تعینات فوجی نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کی پوزیشن پر حملے، ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی مبینہ طور پر تباہ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ جنوبی لبنان کی جانب بھیجا گیا مبینہ اسرائیلی ڈرون بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے جاسوسی آلات بھی نشانہ بنائے۔ غزہ اسپتال پر عالمی غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش، اسرائیل نے غزہ میں صرف 20 امدادی ٹرک جانے کی مشروط اجازت دے دی، کہا یہ اجازت صرف جنوبی غزہ تک محدود ہوگی۔ امداد بحالی کے لیے اسرائیل سے معاہدے کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا، کہا امریکہ خود بھی غزہ کے لیے 10 کروڑ امریکی ڈالر امداد دے گا۔ جو بائیڈن نے اسپتال پر حملے سے اسرائیل کو کلین چٹ دی، کہا اسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں سامنے والی پارٹی نے کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کو امدادی قافلے کل جا سکیں گے، سامان اقوام متحدہ کے تحت تقسیم ہوگا، حماس نے رکاوٹ ڈالی تو تقسیم روک دی جائے گی۔ صورتحال میں برطانیہ کے وزیر اعظم آج اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی برازیلی قرارداد بھی ویٹو کر دی۔ برازیل کی قرارداد میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ مسئلے کے کسی بھی حل پر تیار ہی نہیں۔ روس کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیب اکرم کی جانب سے غزہ اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے، اسے بین الاقوامی تحقیقات کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھاری ذمہ داری ان پر ہے جو بمباری جاری رہنے کا سبب بن رہے ہیں، جنرل اسمبلی اجلاس پر زور۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں غزہ اسپتال پر حملے کو شرمناک قرار دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک سے تل ابیب سے سفیروں کو بلانے کا مطالبہ۔ اسرائیل پر تیل کی پابندیوں سمیت دیگر پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی بم حملے پر رد عمل، کہا اسرائیل کا غزہ میں اسپتال پر گھناؤنا حملہ اپنے دفاع کا عمل نہیں، فلسطینیوں کا ان کے گھروں سے جبری انخلا ختم کیا جائے۔ غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے سامنے ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ سٹی یونیورسٹی نیو یارک کے اساتذہ اور طلباء کا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے قریب احتجاج۔ شکاگو میں انسانیت سے محبت کرنے والے سڑکوں پر نکلے، فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی امداد روکنے کا مطالبہ۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے باہر سینکڑوں افراد کا غزہ اسپتال پر حملے کے خلاف احتجاج۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، دنیا سے انسانیت کے تحفظ کا مطالبہ۔ اٹلی، ترکیے، مصر، اردن، تیونس، لبنان اور فلپائن میں بھی جنگ زدہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو
पाकिस्तान का वजीर आजम समझते हो तो आप फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर खारजा को फलस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरां हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानहा कारसाज की याद में जलसे से खिताब में कहा, निगरां वजीर आजम और वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सब एक हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी रोकने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज भी जारी रहेगी। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आज आपको एतराज़ नहीं, कल फैसला कलअदम करने का कहेंगे। चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की भी तकरीब में शिरकत। निगरां वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। सी पैक के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ML1 मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन के दस्तखत। लागत $6.7 अरब रह गई, जल्द काम शुरू होगा। कराची में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक डाकुओं के बैनुल-सूबाई बर्मी गैंग से है। मुल्जिमान खुद को पुलिस और एजेंसियों का जाहिर करके घरों में दाखिल होते थे। गैंग के 8 कारिंदे पहले मारे जा चुके, 2 बैरून मुल्क फरार हैं। फैसलाबाद की समंदरी रोड पर स्टेज अदाकारा माला की गाड़ी पर फायरिंग, भाई जान बहक, मेकअप आर्टिस्ट जख्मी। कार सवार मुल्जिमान के हमले में स्टेज अदाकारा फायरिंग से महफूज रहीं। लाहौर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली फिंगरप्रिंट्स और दीगर डिवाइसेस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फ्रॉड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया।
सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। रावलपिंडी में खुसूसी टास्क फोर्स ने मजीद 6 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तामीरात गिरा दी। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी शहरियों से फ्रॉड, ज़मीनों पर कब्जे में मुलव्वस हैं। अवाम को सरमाकारी से पहले RDA से राब्ता करने का मशवरा। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तस्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं। वकील फारूक नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम बट ने कहा कि इकसात जमा कराने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरख्वास्त ना लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा कि वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर ना होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा, बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल कराएं। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानहा कारसाज के शहदा को खिराज तहसीन। कहा, 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच ना आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शहीदों को सलाम। UN के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट्स जो है UN की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। गजा के एक हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, इस किस्म के जो है वो शेल पड़े हुए हैं जो कि आंसू गैस के शेल हैं और ये यहाँ पे फोर्सेस ने इस्तेमाल करके मजमे को यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की गाजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। मैदान जंग से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए इसराइली और लबनानी सरहद के करीब लबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर एहतजाज और तोड़ फोड़ की बराह रास्त कवरेज। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गाज़ा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दचार हैं। जुनून में मुब्तला इसराइलियों को दुनिया भर में हर तरफ इस फ़लस्तीनी परचम नजर आने लगे। इसराइल इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ने भारतीय टीवी की मेज़बान के कपड़ों पर ही एतराज़ जड़ दिया। कहा, आप फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं मगर जान लें कि इसराइली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इसराइली एहलकार को लाजवाब कर दिया। बताया, उसने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब्ज़ साड़ी पहनी है। इसराइली एहलकार ने टोका कि ये किसी और मौके के लिए संभाल रखें तो मेज़बान ने झड़क दिया। कहा, वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती कि क्या पहनना है और क्या कहना है। वीडियो वायरल हो गई। मुसलमानों की नफरत में फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने अपने ही फुटबॉल लेजेंड को दहशतगर्द कह दिया। करीम बेंज़ेमा पर दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें मालूम चला है कि करीम बेंज़ेमा अख़वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक रखते हैं। फ्रांसीसी वजीर दाखिला के ये इल्ज़ामात बेंज़ेमा की तरफ से फ़लस्तीनियों की हिमायत के ऐलान के बाद सामने आए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने फ्रांसीसी वजीर दाखिला का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया।